Good morning student. Today we will learn next point, derivative of a parametric function. See, if x equal to f of t and y equal to g of t are differential functions of a parameter t, then y is a differentiable function of x and dy by dx which is equal to dy by dt upon dx by dt. Here dx by dt is not equal to 0, that means denominator not equal to 0. इसका मतलब क्या है, आपको अगर क्वेश्चन में x इक्वल टू फंक्शन t में दिया है और y इक्वल टू फंक्शन t में दिया है और वहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ये फार्मूला क्या है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. बस एक बात याद रखो, क्वेश्चन में देते वक्त x पहले दिया जाता है, y बाद में दिया जाता है. तो आप सॉल्व करते वक्त y पहले लिखो, y को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद x लिखो, x को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, बाद में इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा. मैंने इसलिए बताया कि y पहले लेना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, x पहला फंक्शन है तो उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखते वक्त जो है x को जो डिफ्रेंशिएट किया है वो डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए, लेकिन गलती से पहले जो आंसर आया है वो स्टूडेंट न्यूमरेटर में लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो बेस्ट वे, पहले y लिखो, उसे डिफ्रेंशिएट करो, फिर x लिखो, उसे डिफ्रेंशिएट करो, बाद में ये फार्मूला लिखो, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड करो, आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन. बहुत सिंपल पॉइंट है. नाउ सी द एग्जांपल्स. एक्सरसाइज 3.5. Find dy by dx if x equal to e raised to 3t and y equal to e raised to 4t plus 5. जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपके लिए रखे हैं, जो थोड़े से हार्ड है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन. सो पहले हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे. सो y इक्वल टू e raised to 4t plus 5. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t we get. So here we get dy by dt, here d dt of e raised to 4t plus 5. Same procedure when we differentiate e raised to x, as we know that the derivative of e raised to x is e raised to x. Similar way, derivative of e raised to 4t plus 5 with respect to t, we get here same step, e raised to 4t plus 5 and again derivative of 40 plus 5. चेन रूल यूज हो गया यहाँ पे. तो e raised to 40 plus 5 ब्रैकेट में 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू t 0 आएगा. सो हियर वी गेट 4 into 1 4, 4 plus 0 4. So dy by dt which is equal to 4 into e raised to 4t plus 5. This is equation 1. Now take x equal to, so now x equal to e raised to 3t, e raised to 3t. Again differentiating with respect to t we get. So x को differentiate करेंगे, x dx by dt equal to d dt of e raised to 3t. Same formula, derivative of e raised to x is e raised to x. So derivative of e raised to 3t is e raised to 3t and again derivative of 3t. So e raised to 3t, here 3 constant and derivative of t with respect to t 1 मिल जाएगा. So 3 into 1 3, here we get dx by dt which is equal to 3 into e raised to 3t. So this is equation 2. Now by using derivative of parametric function, we know that dy by dx which is equal to dy by dt upon dx by dt. So dy by dt is our first equation and dx by dt is our second equation. Now substitute these two equations in this formula. We get dy by dt is 4 e raised to 40 plus 5 upon dx by dt is 3 e raised to 3t.
So 4 and 3 are constant. So here we write 4 by 3 as it is. E raised to, यहाँ पे e raised to है. So here we use laws of indices. A raised to m upon a raised to n. We can write here a raised to m minus n. So by using this formula, we can write here e raised to 40 plus 5 minus 3t. So 40 minus 3t. So here we get dy by dx equal to 4 by 3 e raised to t plus 5. So this is the final answer. Now see second example. Question second. Find dy by dx if x equal to u plus 1 upon u whole square and y equal to 2 raised to u plus 1 upon u. Okay. So here function is in u. That means here parameter is u. So here we have to differentiate with respect to u. First we write here given y equal to. So y equal to 2 raised to u plus 1 upon u. So differentiating with respect to u we get. u से differentiate करेंगे. So here we get dy by du and here we get d du of 2 raised to u plus 1 upon u. तो फिर से यहाँ पे चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. सो 2 raised to ब्रैकेट मतलब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव का कौन सा स्टैंडर्ड रूल यूज़ करना है, डी डी एक्स ऑफ a raised to x. So we know that derivative of a raised to x is a raised to x log a. Same way derivative of 2 raised to x is 2 raised to x log 2. So similarly here we get 2 raised to bracket as it is log 2 and again derivative of u plus 1 upon u. तो यहाँ पे मैंने चेन रूल यूज़ किया. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पे 2 raised to ब्रैकेट इंटू लॉग 2 आएगा और ये जो ब्रैकेट है उसका फिर से डेरिवेटिव. सो 2 raised to u plus 1 upon u log 2 as it is. now derivative of u with respect to u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पे भी 1 आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 बाई यू स्क्वायर. ठीक है, आपको समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो हियर वी गेट dy बाई डी यू इक्वल टू 2 raised to u plus 1 upon u log 2 1 minus 1 by u square. So equation 1. Now we write x equal to. So now x equal to u plus 1 upon u whole square. Again differentiating with respect to u we get. So here we get dx by du and here d du of u plus 1 upon u whole square. अब यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर. सो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 2x. तो सेम वे यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है. सो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, सो 2 इंटू ब्रैकेट एज इट इज एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. तो यहाँ पे मैंने चेन रूल यूज़ किया. तो एक्स स्क्वायर का जैसे 2x डेरिवेटिव होता है वैसे ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू ब्रैकेट एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. यहाँ पे u आएगा. ठीक है, सो ये एज इट इज आएगा u प्लस 1 अपॉन u. इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u 1 आएगा एंड 1 अपॉन u का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई यू स्क्वायर आएगा, जैसे हमने पहले देखा. यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा. सो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, डी एक्स बाई डी यू विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट and 1 minus 1 by u square, equation 2. So from equation 1 and 2 we get, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे by using derivative of parametric function तो भी चलेगा, या फिर इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा. So dy by dx equal to dy by du
अपॉन डी एक्स बाई डी यू। वही पैरामीट्रिक फंक्शन का ही फॉर्मूला है, बस वहाँ पे पैरामीटर टी था, यहाँ पे पैरामीटर यू है। तो आपका जो एग्जाम्पल जिस पैरामीटर में है वो वैसे आपका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। सो हियर डी वाई बाई डी यू हमें क्या मिला है, तो देखो 2 रेस टू यू प्लस 1 अपॉन यू log 2 और ये ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी यू क्या मिला है 2 इंटू यू प्लस 1 बाई यू और ये ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर। तो जितना कैंसिल हो रहा है इतना कैंसिल करो, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है। बाकी जो टर्म है तो उसमें कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रेस टू यू प्लस 1 अपॉन यू अपॉन 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू log 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसे और भी सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये जो है टर्म वो है आपकी y की टर्म है और इसका स्क्वायर वो आपकी x की टर्म है। तो अगर आप इसे x और y में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा y इंटू log 2 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन 2, थर्ड एग्जाम्पल। डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x। अब जब क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है तो यहाँ पे हमें 5 raised to x, देखो पैरामीटर x ही है और यहाँ पे log x, तो यहाँ पे दोनों में पैरामीटर सेम ही है, x ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो फंक्शन है उसे u सपोज करो और दूसरा जो फंक्शन है उसे v सपोज करो और यहाँ पे आप du by dv फाइंड आउट करेंगे। So first we write here given u equal to 5 raised to x and v equal to log x, और हमें फाइंड आउट क्या करना है du by dx, सॉरी du by dv फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी टेक हियर u equal to 5 raised to x, differentiating with respect to x we get so du by dx डी डी एक्स ऑफ 5 raised to x। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x। सो वी नो दैट a raised to x इंटू लॉग a, तो वैसे यहाँ पे 5 raised to x इंटू लॉग 5, इक्वेशन 1। सो ये मिल गया du by dx। नाउ v इक्वल टू है log x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dv by dx, we know that derivative of log x is 1 upon x. So here we get dv by dx equal to 1 upon x, equation 2. So from equation 1 and 2 we get du by dv which is equal to du by dx upon dv by dx। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन अब यहाँ पे सीरियली पुट करना है, ये पहला है ये दूसरा है, तो यहाँ पे पुट करो तो du by dx है 5 raised to x इंटू log 5 और dv by dx है 1 upon x। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स न्यूमरेटर। सो du by dv विच इज इक्वल टू 5 raised to x into log 5। So this is final answer. Now the next question, third. If x equal to 4t upon 1 plus t square, y equal to 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square, then show that dy by dx इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 4y। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है dy by dx इक्वल टू ये टर्म आनी चाहिए जो कि xy में है, मतलब आप लास्ट में आपको सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ेगा, जो भी आंसर आपको t में मिला है उसे xy में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन y इक्वल टू
पहले y लेंगे 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर. सो हियर पैरामीटर इज t. सो वी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट. तो इसे t से डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो हियर वी गेट dy बाई डी टी. 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर ही रखो. डी डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो यहाँ पे u बाई वी रूल यूज़ होगा. ये u है तो ये v. तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी रूल. ठीक है, तो आपको पता है क्या है, v पहले आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u. तो वैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट, 3 को बाहर ही रखो. v पहले मतलब डिनोमिनेटर. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. जिसके आगे डी डी टी लिखा है सिर्फ उसी का डेरिवेटिव. जिसके आगे डी डी टी नहीं है वो टर्म एज इट इज. सो 3 एज इट इज, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज. अब डायरेक्ट लिखेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 2t इंटू 1. 0 माइनस 2t मतलब माइनस 2t रहेगा. माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर. सो माइनस 2t क्यूब हो जाएगा. अब यहाँ पे माइनस 2t इंटू 1 2t माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब हो जाएगा. ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़. अब ब्रैकेट निकाल दो. सो माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. तो 2t क्यूब एंड 2t क्यूब जो कि डिफरेंट साइन है कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें dy बाई डी टी मिल गया 3 इंटू 4 माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. इक्वेशन 1. नाउ x इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t we get. So dx by dt equal to 4 constant है, d dt of t by 1 plus t square. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से u by v का रूल यूज होगा. 4 एज इट इज रखो. सो 4 इंटू ब्रैकेट में डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ t माइनस t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ t 1 हो जाएगा. t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 0 डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 4 एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा. सो 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, तो ये मिल गया हमें dx बाय dt. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जो कि हमने फाइंड आउट किया। सो डी वाई बाई डी टी हमें मिला था 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी मिला है 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -12t अपॉन 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 4 से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 माइनस 3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो आंसर मिला है वो t में मिला है, -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -9x/4y, तो हमें x बाय y में आंसर चाहिए। तो x और y आपके सामने हैं, तो हम x बाय y फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। सो नाउ x बाय y इक्वल टू, हमें पता है x है 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y है 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा 4t अपॉन 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल किया तो ये मिल गई टर्म। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों में क्या सिमिलर दिख रहा है हमें, तो ये t की टर्म दिख रही है, सेम है, t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये नंबर डिफरेंट है लेकिन t की टर्म सेम है, तो अगर मैं इस नंबर को LHS में ट्रांसफ़र करती हूँ तो वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 4/3 को मैं इधर ट्रांसफ़र करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 4 मल्टीप्लाई इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 4y, तो 4/3 इधर ट्रांसफ़र किया 3/4 मिल गया, इक्वल टू में क्या मिलेगा t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हम इसमें पुट करेंगे t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर में। सो इसे इक्वेशन 3 देते हैं। सो पुटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, सो 3 में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो -3 वैसे ही रहेगा और t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सो 3x अपॉन 4y। सो 3 इंटू 3 9, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -9x अपॉन 4y, जो कि हमें प्रूव करना था। देखो ये प्रूव हो गया। थैंक यू।